Hello my dear, welcome to all of you in Affect English classes. मैं मिंटू कुमार वेलकम करता हूँ आपकी आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड माय डियर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का चांस मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में वॉइस पार्ट 3 को पढ़ते हैं। माय डियर, इससे पहले वाले वीडियो में टेंस के एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम लोग सीखे थे। इस वीडियो में 6 in 1 पैसिव करते हैं। फर्स्ट में देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। द बॉयज प्ले क्रिकेट। पैसिव, क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट, द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। पैसिव, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। पैसिव, इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट, डू द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट। पैसिव, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट, व्हाई डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। पैसिव, व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट, व्हाई डू द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट। पैसिव, व्हाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट में देखिए सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, ही स्टोल हर पर्स। पैसिव, हर पर्स वाज स्टोलन बाय हिम। नेक्स्ट, ही डिड नॉट स्टील हर पर्स। पैसिव, her purse was not stolen by him. Next, did he steal her purse? Passive, was her purse stolen by him? Next, did he not steal her purse? Passive, was her purse not stolen by him? Next, why did he steal her purse? Passive, why was her purse stolen by him? Next, why did he not steal her purse? Passive, why was her purse not stolen by him? My dear, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आइए नेक्स्ट में सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल देखिए, he will help me। पैसिव, I shall be helped by him. Next, he will not help me. Passive, I shall not be helped by him. Next, will he help me? Passive, shall I be helped by him? Next, will he not help me? Passive, shall I not be helped by him? Next, why will he help me? Passive, why shall I be helped by him? Next, why will he not help me? Passive, why shall I not be helped by him? अब आइए नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, शी इज टेलिंग ए लाई। पैसिव, a lie is being told by her. Next, she is not telling a lie. Passive, a lie is not being told by her. Next, is she telling a lie? Passive, is a lie being told by her? Next, is she not telling a lie? Passive, is a lie not being told by her? Next, why is she
telling a lie. Passive. Why is a lie being told by her? Next. Why is she not telling a lie? Passive. Why is a lie not being told by her? नेक्स्ट आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रेन वेयर फ्लाइंग द काइट्स। पैसिव, द काइट्स वेयर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन वेयर नॉट फ्लाइंग द काइट्स। पैसिव, द काइट्स वेयर नॉट बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन। Next, were the children flying the kites? Passive, were the kites being flown by the children? Next, were the children not flying the kites? Passive, were the kites not being flown by the children? Next, why were the children flying the kites? Passive, why were the kites being flown by the children? Next, why were the children not flying the kites? Passive, why were the kites not being flown by the children? अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल बी डूइंग दिस वर्क। पैसिव, दिस वर्क विल बी being done by us. Next, we shall not be doing this work. Passive, this work will not be being done by us. Next, shall we be doing this work? Passive, will this work be being done by us? Next, shall we not be doing this work? Passive, will this work not be being done by us? Next, where shall we be doing this work? Passive, where will this work be being done by us? Next, where shall we not be doing this work? Passive, where will this work not be being done by us? अब आइए नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, द मैड डॉग हैज बिटेन दिस मैन। पैसिव, दिस मैन हैज बीन बिटेन बाय द मैड डॉग। नेक्स्ट, द मैड डॉग हैज नॉट बिटेन दिस मैन। पैसिव, दिस मैन हैज नॉट बीन बिटेन बाय द मैड डॉग। Next, has the mad dog bitten this man? Passive, has this man been bitten by the mad dog? Next, has the mad dog not bitten this man? Passive, has this man not been bitten by the mad dog? Next, when has the mad dog bitten this man? Passive, when has this man been bitten by the mad dog? Next, when has the mad dog not bitten this man? Passive, when has this man not been bitten by the mad dog? अब आइए नेक्स्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड टाउट द स्टूडेंट्स। पैसिव, the students had been taught by me. Next, I had not taught the students. Passive, the students had not been taught by me. Next, had I taught the students? Passive, had the students been taught by me. Next, had I not taught the students? Passive, had the students not been taught by me. Next, why had I taught the students? Passive,
why had the students been taught by me? Next, why had I not taught the students? Passive, why had the students not been taught by me? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव चीटेड मी। पैसिव, आई शैल हैव बीन चीटेड बाय हिम। नेक्स्ट, ही विल नॉट हैव चीटेड मी। पैसिव, आई शैल नॉट हैव बीन चीटेड बाय हिम। नेक्स्ट, will he have cheated me? Passive, shall I have been cheated by him? Next, will he not have cheated me? Passive, shall I not have been cheated by him? Next, why will he have cheated me? Passive, why shall I have been cheated by him? Next, why will he not have cheated me? Passive, why shall I not have been cheated by me? Now, I hope that आप लोग समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माय डियर, मैंने वॉइस के पहले पार्ट में जो है ये बात बता चुका हूँ, पहले या सेकेंड पार्ट में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों टेंसेस का जो है जनरली एक्टिव से पैसिव नहीं किया जाता है। लेकिन माइकल स्वॉन के अनुसार ये चारों का यदि अगर आप लोग जो है पैसिव करना चाहते हैं तो बीइंग जोड़कर कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He has been teaching English since 2012. पैसिव देखिए, English has been being taught by him since 2012. Next, he has not been teaching English since 2012. Passive, English has not been being taught by him since 2012. Next, has he been teaching English since 2012? Passive, has English been being taught by him since 2012? Next, has he not been teaching English since 2012? Passive, has English not been being taught by him since 2012? Next, why has he been teaching English since 2012? Passive, why has English been being taught by him since 2012? Next, why has he not been teaching English since 2012? Passive, why has English not been being taught by him since 2012? अब आइए नेक्स्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, द फार्मर हैड बीन प्लाइंग द फील्ड फॉर 5 years. पैसिव, द फील्ड हैड बीन बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर फॉर 5 years. नेक्स्ट, द फार्मर हैड नॉट बीन प्लाइंग द फील्ड for 5 years. Passive, the field had not been being plowed by the farmer for 5 years. Next, had the farmer been plowing the field for 5 years? Passive, had the field been being plowed by the farmer for 5 years? Next, had the farmer not been plowing the field for 5 years? Passive, had the field not been being plowed by the farmer for 5 years? Next, why had the farmer been plowing the field for 5 years?
पैसिव, why had the field been being plowed by the farmer for 5 years? Next, why had the farmer not been plowing the field for 5 years? Passive, why had the field not been being plowed by the farmer? अब आइए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, राधा विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम इवनिंग। पैसिव, फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम इवनिंग। नेक्स्ट, राधा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम इवनिंग। पैसिव, फूड विल नॉट हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम इवनिंग। नेक्स्ट, will Radha have been cooking food from evening? Passive, will food have been being cooked by Radha from evening? Next, will Radha not have been cooking food from evening? Passive, will food not have been being cooked by Radha from evening? Next, why will Radha have been cooking food from evening? Passive, why will food have been being cooked by Radha from evening? Next, why will Radha not have been cooking food from evening? Passive, why will food not have been being cooked by Radha from evening? My dear, अब कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ लेते हैं पैसिव वॉइस के लिए। तो देखिए, स्पेशल रूल्स में फर्स्ट में देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट के अब्सेंट रहने पर व्हाट, हाउ मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या हाउ मच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से स्टार्ट होने वाले एक्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जाता है। यानी जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा और सेंटेंस का स्टार्टिंग जो है व्हाट से या हाउ मैनी से या हाउ मच से रहेगा। जब हाउ मैनी रहेगा तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और जब हाउ मच रहेगा उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से स्टार्ट होगा। तो जब ये तीनों से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव देखिए इस तरह से बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डज शी इट। अब देखिए इसमें जो है वह क्या खाती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, व्हाट डज शी इट वर्ब तक ही ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका देखिए पैसिव इस रूल से बनाया जाता है, व्हाट इज इटेन बाय हर। यानी व्हाट को व्हाट में लिखा गया और सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसमें एम इज आर का प्रयोग किया जाता है, और तब हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी एम इज आर के बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप और तब बाय, और अंत में जो है सब्जेक्ट को लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैज ही डन। तो व्हाट हैज बीन डन बाय हिम, यानी व्हाट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो पैसिव का होता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप लिखेंगे और तब बाय लिखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वेयर यू डूइंग। इसका पैसिव देखिए, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। नेक्स्ट, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। इसका पैसिव देखिए, हाउ मैनी बुक्स आर read by you. Next, how much milk have you drunk? Passive, how much milk has been drunk by you. Next rule देखिए, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हु का प्रयोग रहता है तो उसका पैसिव जो है पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जाता है। एग्जाम्पल के साथ देखिए, हु टाउट यू इंग्लिश। तो इसका देखिए जब हु लगा हुआ रहेगा सेंटेंस में तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक या तो बाय हुम लगाकर और या तो हु लगाकर। जब बाय हुम लगाएंगे तो
शुरू में लगाएंगे बाय हुम, और जब हु लगाएंगे तो लास्ट में लिखेंगे बाय। देखिए यहाँ पे बना हुआ है बाय हुम वेयर यू टॉट इंग्लिश। इसी का और में देखिए हु वेयर यू टॉट इंग्लिश बाय, यानी जब शुरू में हु लगाए हैं तो लास्ट में बाय, और जब शुरू में बाय लगाए हैं तो बाय के साथ हुम, नॉट हु, यानी बाय के साथ हुम लगाएंगे, वो भी शुरू में, हु नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु रोट द महाभारत, बाय हुम वाज द महाभारत रिटेन, और हु वाज द महाभारत रिटेन बाय। नेक्स्ट देखिए, हु रोट दिस बुक, पैसिव देखिए बाय हुम वाज दिस बुक रिटेन, और हु वाज दिस बुक रिटेन बाय। नेक्स्ट देखिए, हु हैज स्टोलन हर पेन, पैसिव बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन, और हु हैज हर पेन बीन स्टोलन बाय। नेक्स्ट, हु टाउट हर रशियन, पैसिव बाय हुम वाज सी टाउट रशियन, और हु वाज सी टाउट रशियन बाय। नेक्स्ट, हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश, पैसिव बाय हुम वाज ही बीइंग टाउट इंग्लिश, और हु वाज ही बीइंग टाउट इंग्लिश बाय। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब WH इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें विच या हुम का प्रयोग रहता है तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह से बदला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, विच टीचर टाउट यू, पैसिव देखिए बाय विच टीचर वेयर यू टाउट, या विच टीचर वेयर यू टाउट बाय। नेक्स्ट देखिए, हुम डिड यू लाफ एट, पैसिव देखिए हु वाज लाफ्ड एट बाय यू। नेक्स्ट देखिए, हुम विल यू मर्डर, पैसिव हु विल बी मर्डर्ड बाय यू। नेक्स्ट, हुम हैव यू हेल्प्ड, पैसिव हु हैज बीन हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट, whom do you like most, पैसिव who is liked most by you। नेक्स्ट, which man abused her, पैसिव by which man was she abused, और which man was she abused by। नेक्स्ट, which girl loves मुकेश, पैसिव by which girl is मुकेश loved, और which girl is मुकेश loved by। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो है पैसिव बनाने के लिए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सभी जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जब सेंटेंस में ये सभी लगा रहेगा तब इसका पैसिव जो है कैसे करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर बेसिस हो तो उसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर से चेंज होगा। पैसिव स्ट्रक्चर देख लीजिए कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले पैसिव ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेगा वो लिखेंगे, और तब इसके बाद बी ऐड करेंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और अंत में पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई मस्ट हेल्प द पुअर, यानी इसका हिंदी होता है मुझे अवश्य गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो पैसिव देख लीजिए इसका, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट देखिए,
ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। पैसिव, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। पैसिव, आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाय अस। बाय अस को ब्रैकेट में इसलिए घेर दिए हैं कि बाय अस यहाँ पे नहीं भी दीजिएगा तो भी ये मीनिंग को पूरा कर लेता है। हमें जो है अपने देश से प्यार करना चाहिए, यानी सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो यहाँ पे बाय अस नहीं भी देंगे तो चलेगा। नेक्स्ट देखिए, दे में विन द मैच, वे लोग मैच जीत सकते हैं। पैसिव, द मैच में वी वन, यहाँ पर भी जो है बाय देम नहीं भी देंगे तो भी मीनिंग पूरा कर रहा है। अब देखिए, यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर बेसिस हो तो उसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर से चेंज होगा। पैसिव स्ट्रक्चर देख लीजिए, पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। पैसिव, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय अस। यू कुड हैव रिटन द लेटर्स। पैसिव, the letter could have been written by you. Next, we ought to have loved our neighbors. Passive, our neighbors ought to have been loved. देखिए स्क्रीन पर कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप जो है जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट जो है उतना अधिक मजबूत हो जाएगा। माय डियर, यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को अगेन देख लीजिए, और यदि कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो लिंक को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।